lecture in between. Yes. Okay. Yes. So today we'll continue it fresh. We'll continue it from the beginning. And the first thing which we will discuss over here is the nomenclature of aldehydes and ketones. Guys, you guys have carboxylic acid also the part of the same chapter, right? But it's going to be in the second part. So first let us focus on aldehydes and ketones. What exactly are we trying to do over here? So what is the characteristic group which is in aldehydes and ketones? Beta last class में discuss किया था हमने. You remember? Carbonyl group. Very good. Yes, it was the carbonyl group. So which is this carbonyl group that we're talking about? C double bond O. C double bond O. Ooh. Okay. C double bond O. So you are having a general structure of aldehydes and ketones in front of you. What is the basic difference do you see over here? This is an organic compound. Yes. Carbon atom is involved. Yes. More than one carbon atom is involved. Yes. What is the basic difference? The one thing that is differentiating aldehydes from ketones, they are known as functional group isomers, right? Or they are known as position isomers. कौन से isomers होते हैं? Sorry, I'm not keeping well since past 3 days, and that's why I chose to this video wala, so I can rest and talk. It's better for me. Beta, what is that one difference that you see over here? Sir, in aldehydes, that carbonyl group is bonded to at least one hydrogen atom, but in ketones, it is attached and bounded to two alkyl groups only, alkyl or aryl groups. Okay, so is this lecture going to be a monologue between me and Akshay, or others are just going to sit quiet? Good morning, Aman. So, ये aldehydes or ketones में the basic difference is going to be that one hydrogen atom, that pink hydrogen atom that you can see. This is going to be fixed in aldehydes, whereas in ketones, it's going to be both alkyl group on the other side. The alkyl groups can be same or they can be different. Am I right or am I right? Yes, sir. Yes. So this is the carbonyl group which we were talking about, beta. C double bond O. ये carbonyl group है जिसकी हम बात कर रहे हैं. And the general molecular formula for both of them is CnH2nO. Both aldehydes and ketones can be represented by this general formula CnH2nO. The difference is here. यहाँ पे H permanently attached है and यहाँ पे it is going to be R dash. Simple as that. Where N is what beta? N का मतलब क्या होता है इस फॉर्मूला में CnH2nO में? Number of hydrogen atom through number of carbon in C and hydrogen means how much number of hydrogen atoms are bounded. ये देखो कितना confusing है. N is simple beta, the number of carbon atoms ना CnH2nO में. Yes. Yeah, it is the number of carbon atoms. ये देखो मस्त गोल गोल घुमाने का इनको. अच्छा, but इनका they resemble each other a lot in their chemical properties. So collectively they are called as carbonyl compounds. So entrance में या 12th में if you get a question wherein which they say that so and so reaction or some reaction is there, it is giving you a carbonyl compound. So whenever you hear this word carbonyl compound, your mind should divert you towards aldehydes and ketones. So carbonyl compounds bole to aldehydes and ketones. They will not specify. They will say you will get a carbonyl compound. That compound can be aldehyde. That compound can be a ketone. So depending on what reaction is happening, what reagent has been used, and what would be the end product, because we are going to learn the general reactions, method of preparation, and so many different things for carbonyl compounds. So do not get confused. Carbonyl compounds are nothing but your aldehydes and ketones. But aldehydes and ketones, they are differing
They are differing in the nature of the groups that are attached to this carbonyl carbon. ए बेटा, इसको मैं कार्बोनिल कार्बन क्यों बोलूंगा? Because C double bond O is your carbonyl group. This entire thing is your carbonyl group. इसके साथ जो अटैच रहेगा, that is going to differentiate between aldehydes and ketones. अब aldehydes की बात करते हैं, ठीक है? Yes, sir. This is centrally satisfied double bond with oxygen, एक दो, one bond with hydrogen. Carbon is tetravalent, so it has to make 4 bonds. दो Yes. bonds यहाँ हो गया, एक bond यहाँ हो गया. This one bond which is free is going to be attached to some alkyl group and it's going to be derived from there. Okay. ये देखो, where R can be either a hydrogen atom or it can be alkyl or it can be aryl. Guys, what do I mean by aryl? Nobody knows. So alternate double and single bond structure. Benzene. Alternate double and single. Can you name one aryl group which we are familiar with? Benzene. Very good. Right? Benzene. Yeah, we are familiar with benzene. And that is one aryl group very famously we know. Like Akshay said, it is alternate double and single bond. It can be hydrogen also. So can someone tell me without me going ahead, सबसे common या सबसे मतलब सबसे basic वाला aldehyde कौन सा होगा? HCHO. This CHO is going to be common. This R group will differ and उसके हिसाब से I will get different names for aldehydes. So यहाँ पे अगर H आ गया, that is going to be the basic, most basic अपना aldehyde. HCHO का अगर आपने नाम सुना होगा तो उसको हम लोग formaldehyde बोलते हैं. Formaldehyde. सुना है बेटा? Sir. Formaldehyde से हमें एक एसिड मिलती है. कौन सी एसिड होती है बेटा वो? उसका ऑक्सीडेशन करके फॉर्मिक एसिड, HCOOH. HCHO में एक ऑक्सीजन ऐड किया मतलब उसका ऑक्सीडेशन किया तो आई गेट HCOOH बेटा. Yes. या फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का पता है कहां पे मिलता है फॉर्मिक एसिड? एनीवन? आपको कभी, आप लोगों को कभी चींटी ने काटा है? चींटी ने? Yes. अच्छा, तो आपने चींटी को वापस नहीं काटा बेटा? कोई बात नहीं. तो ये जब आपको चींटी काटती है, it is not cutting, it is the ant is releasing a acid on the body surface which burns, and that acid is formic acid. Did you know this? You didn't know this. अच्छा, अभी बच्चे नींद में हैं. कोई बात नहीं बेटा. So the general formula for aldehyde is going to be RC double bond OH or RCHO. Simple as that. If this is H, corresponding aldehyde क्या हो जाता है बेटा? Formaldehyde. Aldehyde. If R is a if R is your methyl group, its common name becomes acetaldehyde. Can someone tell me the formula for acetic acid? CH3COH. Correct. So now if you see acids are derivatives of aldehydes. ये अभी तक अपने को बताया नहीं है, but can you derive it? दिख रहा है सामने सामने कि इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं एक ऑक्सीजन डाल दूं, I get a different functional group and I get a different compound altogether बेटा. ए बेटा, Yes. C double bond O and COH अगर मैंने कर दिया यहाँ पे, H की जगह अगर OH ग्रुप आ गया तो I will get COOH as the functional group which is that of the acid, right? Yes. अच्छा, so I know it can be little tricky, it can be difficult. You should always compare things, and half the reactions in part 2 ना बेटा in organic chemistry are repeated. जो किसी एक का property है वो दूसरे का making procedure है. So you just have to tabulate it accordingly and then learn. So you know it becomes easier to study that. अगर इसमें benzene ring लगा रहेगा साइड में तो benzaldehyde. So these are the very basic structures. The बाकी के all are derivatives. These are very basic structures of aldehydes.
Have you written down this? Yes, sir. Chalo. In ketones, both the valencies of the carbonyl group are satisfied by alkyl or aryl group. यहाँ पे hydrogen नहीं होगा. Okay, so it can be same or it can be different. Simple as that. If R is equal to R dash, then it will be called as a simple ketone. For example, दोनों R and R dash are CH3 methyl methyl. ठीक है बेटा? So जब दोनों groups same रहेगा, it will be called as a simple ketone. But अगर दोनों groups different रहेगा, it will be called as Mixed ketones. mixed ketones, मिले हुए ketones. ये लिखा? ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप स्किप कर जाते हो. एंड ये बेसिक चीजें ना बहुत काम आती है बेटा. आईयूपीएससी के ऊपर एक फिक्स क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में. अब वो किसका आएगा वो IUPAC has a very important role in entrance also, because they are focusing more on these IUPACs and all. You should be very strong with these IUPAC names and all. Simple Done, ketone, sir. the next ketone. RC double bond O R dash. General formula for ketone. ठीक है. सिंपल कीटोन्स की बात करते हैं. सबसे बेसिक वाला क्या रहेगा? दोनों जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ. CH3COCH3 is your normal acetone. Can girls tell me what is the application of acetone? 11th में बताया था girls. रिमूवर. कौन रिमूवर? किसको रिमूव करोगे बेटा? नेल पॉलिश. Nail polish remover. Very good. Acetone is a nail polish remover. Ink paint remover. It's a good cleansing agent. अच्छा, जब दोनों ग्रुप्स अल्काइल के रहेंगे, जब दोनों ग्रुप बेंजाइल रहेगा, बेंजाइल ग्रुप रहेगा, then the simple ketone will be called as a benzophenone. Benzyl group and phenyl group both are same. So it can also be known as dibenzonone, but dibenzonone sounds a little weird. That's why we are calling it as benzophenone. Benzyl group and phenyl group both are same बेटा. बेंजीन को ही हम लोग फिनाइल बोलते हैं. Yes, sir. अच्छा. So these are the common names of the most common and the most basic ketones and aldehydes. Again, a very simple ketone. It is very general that दोनों बाजू में अगर सेम ग्रुप रहेगा तो अपन उसको सिंपल कीटोन बोलेंगे. अच्छा, लेट्स लुक एट मिक्स्ड कीटोन, जो इन दोनों का ही मिक्स्ड कीटोन है. एक एसीटोन का ग्रुप लगा दो. एसीटोन का ग्रुप क्या है? मिथाइल. और एक बेंजोफिनोल का ग्रुप लगा दो, अराइल ग्रुप. जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, आई गेट अ मिक्स्ड कीटोन विच इज एसिटोफिनोन. एसीटोन का एसिटो आया, फिनोन का फिन आया, एंड बेंजोफिनोन का फिन आया, और लास्ट में तो ON ही आएगा बिकॉज इट इज अ कीटोन. तो इसका पहला पार्ट ले लिया, इसका अगला पार्ट ले लिया, दोनों को मिक्स करके हमने इसका नाम दे दिया एसिटोफिनोन. ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Just hold on, I'm getting a sneeze. Okay. Now let us have a look at their activities. Aldehydes का oxidation is very easy as compared to ketones. Now what is the significance of these compounds? ये जो हमारे aldehydes and ketones है. Now they are very well known for their fragrance and their flavor.
फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस। तो आप देखें इनका एप्लीकेशन ऐसे इंडस्ट्री में होगा जहां पे फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर का इंपॉर्टेंस होता है। अभी एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का स्मेल, ठीक है, तो अभी इसको देखो, एक ऐसे नाक बना रही, कभी खुश नहीं रह सकती ये लोग। तो शी इज स्मेलिंग इट एंड शी इज अज्यूमिंग दिस इज द स्मेल ऑफ एप्पल। तो एसिटाल्डिहाइड, इट स्मेल्स लाइक एप्पल। नाउ बेटा, दिस इज द वेरी जनरल थिंग व्हिच आई एम शोइंग यू। अभी आप ये देख करके भूल जाओगे। आपको पता है एंट्रेंस में या फिर 12th में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हिच स्मेल्स लाइक एप्पल। अब आप लोग ये भूल जाते हो, तब सिंपल सी अगर ये एक चीज याद रह जाएगी हम लोगों की, भाई एसिटाल्डिहाइड है जो एकदम बेसिक अपना मिक्स्ड ये है अल्डिहाइड है, सॉरी सबसे बेसिक अल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड के बाद वाला, उसका स्मेल एप्पल जैसा होता है। सो दैट वन हिंट विल हेल्प यू सेव सो मच ऑफ टाइम if you can recall this. Now our memory is not that great, so we need to note down things and constantly revise them. So one thing about aldehydes and ketones is we need to remember about their fragrance, and acetaldehyde ka fragrance is like that of apple. ये देखो, अभी वैनिलिन करके एक अल्डेहाइड है, वैनिलिन करके। अभी बेटा ये अल्डेहाइड क्यों तुम बोल रहे हो, उसको कोई मुझे बता सकता है? Why is it it's actually not a pure aldehyde, it's a derivative of aldehyde, but still why do you think that this compound is going to be aldehyde? Anyone? The structure is in front of you. Sir, CHO group is there. Excellent, yes, because यहाँ अगर आप देखोगे तो ये CHO group है and this is the characteristic of aldehydic groups, this CHO. अब इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, बट यहाँ पे इस बेंजीन वाले पोजीशन पे CHO ग्रुप है। इसका फ्लेवर या इसका फ्रेग्रेंस इज लाइक दैट ऑफ वेनिला। वेनिला केक्स एंड वेनिला आइसक्रीम सुने बेटा तुम लोग ने? Yes. हाँ जी, तो वो जो खाना बनाने में वेनिला फ्लेवर वगैरह यूज होता है उसमें इन कंपाउंड्स का ये यूज। ए बेटा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या है? ये सब कंपाउंड्स ही है ना। वो बिरयानी बनाते हो आप लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर डालते हो, नहीं डालते हो बेटा? Yes, sir. सफेद चावलों की बिरयानी खानी तुमने, तो वो जो फूड कलर्स है, वो जो फ्लेवर्स है, वो सब यहीं से आते हैं। केक बनाते हो वनीला एसेंस डाल दिया हमने। ये देखो सैलिसल्डिहाइड, ये बेटा सैलिसल्डिहाइड एज fragrance of that of flowers. Now why again I'm calling it as aldehyde? Because CHO group यहाँ पे attached है, salicylaldehyde. ये देखो cinnamon aldehyde, ये इसका कॉमन नेम है cinnamon aldehyde। क्यों? बिकॉज ये सिनेमम के अंदर पाया जाता है। सिनेमम, किसी को इसका हिंदी वर्ड पता है सिनेमम का? दालचीनी। दालचीनी बेटा, ये खांसी होती है तब इसको हम लोग पानी या फिर शहद के साथ खाते हैं। आप लोग बड़े लोग हैं, आप नहीं खाते होगे, हमारे जैसे गरीब इसी को खाते हैं बेटा, ठीक है। तो सिनेमल्डिहाइड, इसकी चाय भी बनती है, पता है आप लोग को? इवन either you are very rich or you are very pure if you do not know cinnamon. Cinnamon, forget about aldehyde. Cinnamon पता है ना तुमको? दालचीनी। Yes. Yes, है ना बेटा? sir. इसको चाय में डालते हैं। इसको ये अक्खा गरम मसाला कभी मम्मी मंगाती है ना बाहर से, तब उसमें देखने का एक स्टिक जैसा ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, दैट इज दालचीनी। उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है उसके अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ सिनेमम अल्डिहाइड। उसका कॉमन नेम इसलिए पड़ा है बिकॉज ये दालचीनी के अंदर वो होता है। तो अपने लिए क्या हो गया बेटा? ये दालचीनी अल्डिहाइड, इन अंग्रेजों के लिए सिनेमम अल्डिहाइड। याद रख लोगे ऐसे? Yes. Yes. ये देखो, अभी ये aldehydes and ketones ना, they have a huge significance in several biomolecules and biochemical processes. ये बेटा तुम लोगों को चैप्टर हो गया बायोमोलिक्यूल्स वाला? No, sir. हे बायोमोलिक्यूल्स बेटा, it is both in biology as well as in chemistry. Sir, in तो आप biology हो देखिए, गया। अच्छा बायोलॉजी में हो गया, तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने जिसमें CHO ग्रुप अटैच था।
Yes. हाँ जी, तो आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह में ये बहुत जगह पाया जाता है बेटा। ये देखो, ग्लूकोज, it is a polyhydroxyaldehyde. Glucose is an example of a polyhydroxyaldehyde. Break the name. जब भी आपको नाम समझ में नहीं आ रहे, नाम को तोड़ें। इसको हम लोग अल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, अक्षय बताना मत बेटा। सारंग, हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हम मिले थे, आप नए स्टूडेंट हो। सारंग वेवल, देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड सिद्धेश वेवल आल्सो। तुम उसके भाई हो बेटा सारंग? सारंग सो रहा है, ओके। अनिरुद्ध, सुरेश, जॉसलिन, मनोरथ, सानिका, पूनम। मेरे बीमार आदमी इतनी बात कर रहा हूँ, ये हट्टे कट्टे नौजवान बात नहीं कर रहे। बोलो। चल बेटा अक्षय, तेरी मेरी जमेगी आज। हाँ बेटा अक्षय, why am I calling it as polyhydroxy? Hydroxy because many hydroxyl groups are there. OH groups are What are the there. hydroxyl groups? OH group. ये OH. देखो, 1 2 3 4 5 है ना बेटा? इतने सारे Yes. हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एक ही कार्बन चेन में लगे हुए हैं। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज पॉलीहाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड क्यों बोल रहा हूँ अक्षय? Sir, CHO group is there in above. देयर इज CHO ग्रुप ओवर हियर। यहाँ CHO ग्रुप लगी पड़ी है, ठीक है? Yes. So this is going to be a polyhydroxy aldehyde group. ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कहीं सुना है आप लोग ने? Yes. कहाँ सुना है बेटा? सर सप्लीमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ग्लूकोज इनटेक करते हैं। Only for that? ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी। अच्छा, इनके अलावा? दैट्स राइट, यू बोथ आर करेक्ट। इसके अलावा क्या बेटा? वो डॉक्टर लगा रहे ना। डॉक्टर ग्लूकोज हाँ वो भी है। अच्छा, और बहुत बेसिक चीज भूल रहे हो आप लोग। मुझे एक्सेप्शनल केसेस बता रहे हो, मतलब आप मेरे को नॉन नेचुरल सोर्सेस बता रहे हो। ये बेटा, ये बेटा, अपन लोग रोटी चावल वगैरह खाते हैं ना? नहीं खाते हो रोटी चावल? तुम लोग सिर्फ बॉइल्ड वेजीज एंड मैक्सिकन इटालियन खाते हो बेटा, है? नो। है ना? तो हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं ना, उसके अंदर से हमको एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी का नॉर्मल नेचुरल सोर्स इज ग्लूकोज। ये घास Yes. फूस जो हम लोग खाते हैं, ये बेटा प्लांट्स एंड ऑल। Yes, व्हाट इज sir. व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? Yes, glucose on. ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स। Yes. आप ऐसे बगीचे में घूम रहे हो तो आप जाके प्लांट्स खाने लगते हो, तो आप ग्लूकोज खा रहे हो, मतलब सिंपल एज दैट, राइट? Yes, sir. वेरी गुड अक्षय, यू ईट प्लांट्स इन द बगीचा, नाइस। ओके बेटा, मैं व्हाई डिड आई डू सो मच ऑफ बंकर्स? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट ये जो आप चीज बड़ी बड़ी रूप में पढ़ रहे हो ना, ऑल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज बेटा ये अपना बेसिक इंटेक है डेली का। अपन इसके कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को रोज खा रहे पी रहे, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि इससे नुकसान नहीं होता है, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ये देखो, अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी बायोलॉजी स्टूडेंट्स ओवर हियर, उसका भी एटीपी ग्लूकोज वगैरह बनता है ना बॉडी में, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो उसी से एनर्जी मिलती है सेल्स को। Yes. Yes. हाँ जी, ये देखो, आप देखें, आपने खाना खाया, वो खाने से ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगा? आप बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हो हवा से, वो ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा, वाटर बॉडी में स्टोर भी हो सकता है, पसीने के थ्रू बाहर भी निकल सकता है। इसका मेन बाय प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी। वो एनर्जी किस काम आएगी बेटा? और खाना खा करके सोने के लिए, है ना? नहीं, to do work.
To do work. What is the work today? It is our work is to do online lectures, eat, sleep, rave, repeat. है ना बेटा? Yes. Yes. So this is how glucose is giving energy to your body. Why am I stressing so much on glucose? Because glucose is a aldehyde. It's a polyhydroxyaldehyde. ये देखो, येलो वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन वाला ऑक्सीजन. सांस सब लोग लेते हो ना बेटा? मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स. इनका इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी काफी होता है. दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स. सॉल्वेंट्स पता है सब लोग को? Yes. ये देखो, एसीटोन एंड ethyl methyl ketone are common industrial solvents. ए बेटा, water is a universal solvent, but Yes. water is a non-organic solvent, right? Organic you know that formula na, like dissolves like. Yes. Yes. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग इतना सारा ऑर्गेनिक क्या बोलते प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मार्केट में. उन सबको डिसॉल्व करके उनके ऊपर रिएक्शन करने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए वी रिक्वायर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. Acetone and ethyl methyl ketone, they act as very good solvents. ए बेटा, acetone is a good solvent. It means it dissolves other compounds in itself. That is why it acts as a very good nail polish remover. Nail paint is also organic color na, organic compound beta, right? Yes, sir. तो जब हम नेल पॉइंट निकालते हैं तब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व कर रहे हैं. जब हम पानी से किसी चीज को साफ करते हैं, मतलब उस कचरे को या फिर उस चीज को पानी अपने अंदर डिसॉल्व करके डिसअपियर करता है. इट इज नॉट जादू. सिमिलरली एसीटोन क्या करेगा? वो केमिकल जो है नेल पेंट के, उसको अपने अंदर डिसॉल्व करके अलग कर देगा उंगली से. गर्ल्स, Yes. ये देखो, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड. फिनॉल तो आप लोग को पता है. व्हाट इज फिनॉल बेटा? बेंजीन के रिंग में एक OH ग्रुप अटैच्ड. ठीक है, अल्कोहल वाले कंपाउंड्स में सीखा होगा आप लोग ने ये, Yes. है ना? अच्छा, when this phenol is reacted with formaldehyde, the most basic aldehyde, when this phenol is reacted with formaldehyde, the most basic aldehyde, you get bakelite. Even anybody is aware of what is a bakelite? Bakelite is a polymer. Polymer compound में पढ़ा होगा आपने ये. What is bakelite used for? किसी को नहीं. Sir, for making other plastic bangles. For making plastic bangles. Then what is plastic used for? If bakelite is used for plastic bangles, then what is plastic? Plastic के अलग अलग variety होता है. ए बच्चों, तुम्हारे घर में स्विच बोर्ड्स है? Yes. लाइट चालू Good बंद करने का, insulator. है ना बेटा? Yes. those switch boards are made up of bakelites. Bakelite का एक प्रॉपर्टी होता है, it is very good heat resistant. तो घर में अगर आग लगता है तो उसको फैलने से रोकने का काम बेकलाइट के स्विचेस करते हैं. बिकॉज अगर वो स्विच जल्दी पिघलेगा तो घर में आग फैलेगा बेटा, राइट? ए बेकलाइट बेटा, बेकलाइट Yes, sir. स्विचेस. ये देखो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ग्लू. यूरिया हम लोग को पता है एक अमाइड ग्रुप का अटैच्ड कंपाउंड है. अगेन इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अ कीटोन. And when it reacts with the basic aldehyde formaldehyde, it forms urea formaldehyde glue, organic glue जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये बेटा, जो हम लोग चिकन पट्टी और जो ग्लू हम लोग बचपन में यूज करते थे, this is not that. This is organic glue. Organic glue can be eaten. You know this, right? No, you didn't know this. फिर उसका यूज कहाँ पे होता है? If urea formaldehyde glue is used in organic products जो बनाते हैं ना हम लोग, वो कैप्सूल्स को अटैच करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं and all, तो वहां इंडस्ट्री में इसका यूज होता है बेटा. Yes, sir. ओके, ये देखो, I told you this in the very beginning. Acetaldehyde is chiefly used as the basic starting product for formation of acetic acid, which is again a very common weak acid, organic acid.
ए बेटा, why are organic acids weak acids? What are weak acids in general? So they partially dissociate into Very good. aqueous They solution. do not dissociate completely. They partially dissociate. Okay. So ये जो अपना acetaldehyde है, this is a weak acid. And sorry, अपना acetic acid है, this is a weak acid. इसको बनाने के लिए the basic component is acetaldehyde. बच्चों, acetaldehyde और acetic acid के दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है. तो इसका मतलब क्या हुआ? I will oxidize acetaldehyde to get acetic acid. I will add a oxygen over here and I will get this structure. ही ऐसे कंपेयर करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा बेटा. Yes. Ethyl acetate. Acetaldehyde is a very common compound which is used to make these so many different compounds. जिसमें medicines वगैरह भी आता है. देखो मैंने आपको बताया था बेटा. ठीक है? And then it is used in polymers also. Polymers बोले तो ऐसा देखा है आप लोग ने कभी रस्सा strong Yes, sir. strength के साथ. Perfume industry में आएगा benzaldehyde. Why will they be used in perfume industry बेटा? Again they are good fragrance. स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हम लोग ने. एप्पल का खुशबू आता है, इसका खुशबू आता है, क्या बोलते हैं, वेनिला का. तो एप्पल और वेनिला फ्लेवर्ड परफ्यूम्स बॉयज नहीं लगाते, लेकिन benzaldehyde, it is used in perfumes. And the dye industry. Dye industry मतलब मर जाने वाला इंडस्ट्री बेटा. Colors वाला. Dye is meaning color over here. That color can be used to color clothes, color hair, color your face, anything. ठीक है? Certain compounds are used to prepare adhesives and glues. Adhesives बोले तो Blues. resins, colors, plastics, fabrics. ठीक है? तो ये देखो, ये इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है अपने अल्डेहाइड्स और कीटोन्स के, इसीलिए हमको इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है बेटा. अधेसिव बोले तो ग्लू. अपने इंडिया में सबसे फेमस अधेसिव कौन सा बेटा? फेविकॉल. वेरी गुड, फेविकॉल. अब त्या अल्डेहाइड्स आणि कीटोन्स हे बाळांनो, आता तुम्हाला कळलं का आपण अल्डेहाइड्स आणि कीटोन्स हे चॅप्टर कशाला आपल्याला शिकायला जरुरी आहे? कारण आताच आम्ही बघितले याचा आपल्या लिव्हिंग लाईफ पासून नॉन लिव्हिंग ऍप्लिकेशन्स पर्यंत खूप सारे इम्पॉर्टंट मेन ऍप्लिकेशन्स आहेत. तर आपल्याला हे इम्पॉर्टंट होऊन जाते की आपल्याला हा कंपाऊंड कशाला समजायचंय. ओके. Sorry, I'm a very bad blocked nose. Now, two systems of nomenclature. What are these two systems of nomenclature we're talking about over here? Common and IUPAC or something else, trivial or what? 12th standard students. Trivial and IUPAC. हाँ, वो तो मेरे बोलने के बाद, वो तो स्क्रीन पे दिखने के बाद. ए बेटा, these are the two systems for any compound, not only aldehyde and ketone. So you should have answered this, na? Common system and IUPAC system. What is the difference between this common system and IUPAC system? The trivial name, local names are used, and IUPAC it is Very good. standardized from Yes, IUPAC. common name is your normal local names which are used. IUPAC is standard throughout the world. IUPAC system का नाम देने का rules होता है कुछ, है ना? साइड चेन्स वगैरह का पोजीशन, डैश, लॉन्ग चेन, ये सब देखना पड़ता है हमको, है ना बेटा? Yes. अच्छा. देखो, अभी देखो, these common names are derived from the corresponding carboxylic acids. ये बेटा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बना, एसिड को रिड्यूस किया तो क्या बनेगा? Aldehyde. है ना, रिवर्स है ना. इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन. एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या मिलेगा मेरे को? अल्डिहाइड मिलेगा. तो कॉमन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. ये देखो, अल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड.
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी एसिड निकाल दें और अल्डिहाइड लगा दें उसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस आईसी एसिड प्लस अल्डिहाइड, तो फॉर्मिक एसिड का आईसी एसिड निकाल करके अल्डिहाइड डाल दे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। Formaldehyde. ये देखें, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उन सब का आईसी एसिड निकाल के हमने क्या डाल दिया? पूरा का पूरा अल्डिहाइड डाल दिया। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर बच्चों? Yes. When I said बच्चों, ओनली अक्षय रिवर्टेड। ए उठो, 7:45 हो गया, सब लोग उठ जाओ अभी। अमित, हाँ सर बोलिए। जगह हो ना बेटा? यस। बाल कटाया बेटा? हाँ, कल नहीं तो सर। लंबे थे, आज रात भर में कैसे कटा लिए? अच्छा, अदिति समझ रहे बेटा? अमन, अनिरुद्ध, अरिन, एरन, अरे तो देखा Yes, सब। yes. दर्शना, जॉसलिन, केदार, मनो, पीयूष, Okay. रिया, श्रावणी, श्रुति, Yes. तनश्री, तेजस, गोसावी, विनायक शल्ला, योगेश, ए पीयूष, स्वयं, इनके जो कॉमन एसिड्स होते हैं उन्हीं से अपने ये नाम डिराइव कर रखे हैं बेटा, है ना? ये देखो, जो पीछे का आईसी एसिड निकाल करके अल्डिहाइड डाल दिया तो मुझे कॉमन नेम मिल जाएगा। फॉर्मिक एसिड चीटी, एसिटिक एसिड एप्पल, बेंजोइक एसिड किसमें था बेटा? Excuse me, my nose is a bit blocked. I hope everybody is making a note of this. Yes, sir. अच्छा, ये देखो, अभी कॉमन सिस्टम में ना हम लोग, ये बेटा आईयूपीएसी सिस्टम में यू नेम द साइड चेंजेस 1 2 3, राइट? Yes. Yes. Common system में we will not name 1 2 3, we will name alpha, beta, gamma, delta. Now where to start is the big question. यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको? मानस, ए मानस, अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा बेटा इधर? Can you hear me when I blow my Yes. nose? Yes, sir. मानस, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है बेटा? COH. CHO, ये वाला है ना बेटा? हाँ, yes, हाँ। sir. तो ये जो है ना CHO, ये अपना अल्डिहाइड ग्रुप है। ये CHO जो है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन इज गोइंग टू बी अल्फा कार्बन, नॉट दिस कार्बन। डू नॉट इंक्लूड द कार्बन विच इज CHO। इसके जस्ट बाद वाला इज अल्फा, उसके बाद वाला इज बीटा, उसके बाद वाला इज गामा, डेल्टा। उसके आगे जितना दूर जाने का नहीं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये बेटा ओके? Yes. Yes. अच्छा, Yes. हम लोग आईयूपीएसी में कैसे 1 पोजीशन पे इथाइल है, 2 पोजीशन पे ब्रोमाइड है, वैसे नाम देते हैं। कॉमन सिस्टम में अपन अल्फा पे इथाइल है और बीटा पे ब्रोमाइड है, ऐसा करके कुछ करने वाले हैं। तो डायरेक्टली लिंक टू अल्डिहाइड ग्रुप इज अल्फा, नेक्स्ट कार्बन म्हणजे बीटा। अच्छा बाळांनो, मला एक सांगा, मी याला कशाला बीटा घेतला आणि याला नाही? हा अल्फा आहे, याच्या बाजूच्या कार्बनला आपण बीटा म्हणतो, पण याला मी बीटा म्हणालो, याला नाही म्हणालो. व्हॉट वाज द रिझन व्हाय आय चोज दिस एज बीटा एंड नॉट दिस? there's a reason behind it. Sir, because CH is attached to CH to CH, and that is a different carbon. बाळा, हा सी, हा जो अल्डिहाइड ग्रुप आहे, हा ग्रुप या कार्बनला अटॅच्ड आहे,
हे दोघी कार्बन ऍटम्स या कार्बनला अटॅच्ड आहे, तर मी याला बीटा घेतला, याला कशाला नाही घेतलं? Long chain. Long chain. व्हेरी Sharon गुड. द chain आंसर is- इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है. शॉर्ट चेन्स विल बी कॉल्ड एज द साइड चेन्स. ए बेटा समझे Yes, क्या? sir. शिंदे कळालं का रे बाळा? Yes, sir. अच्छा. बीटा, ये देखो लाइक दिस, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूट्राल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूट्राल्डिहाइड. ये बेटा यहां देखो, अल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए अल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए अल्डिहाइड लिया. हाउ मेनी कार्बन एटम्स डू यू सी इंक्लूडिंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप? 4. 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स. कैन यू सी? Yes. 4 कार्बन एटम्स के अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? Butane. ब्यूटेन. दिस इज नॉट अ अल्केन, इट इज द डेरिवेटिव. तो कॉमन नेम में वो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइर, ब्यूटाइर, BUTYR. और अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? हाइड्रोक्सी. Hydroxy. बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? ब्रोमो. तो बीटा ब्रोमो ब्यूट्राल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूट्राल्डिहाइड. दिस इज कॉमन नेम, दिस इज नॉट IUPAC नेम बेटा. Yes, sir. ठीक है बच्चा? Yes. Yes. ओके. लेट अस लुक एट IUPAC सिस्टम व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट. अपने को IUPAC सिस्टम आने वाला है. माय नोज इज किलिंग मी. तो अल्डिहाइड्स आर नेम आफ्टर द करस्पॉन्डिंग अल्केन. अल्केन का ANE निकाल देने का और अल्डिहाइड का AL डाल देने का. अल्केन का ANE नहीं निकालने का बेटा, अल्केन का सिर्फ E निकालने का. E निकाल के AL डाल दिए तो क्या हो जाएगा? अल्केनाल हो जाएगा. Alkanal. Yes. है अल्केनाल. अल्केन का E निकाल देने का और अल्डिहाइड का AL डाल देने का, अल्केनाल. सिंह साहब समझ रहे हो? आर्यन सिंह सो रहे हैं. आर्यन सिंह उठो बेटा. सो IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड्स क्या हो जाएगा बेटा? अल्केनाल. Alkanal. अच्छा. What is the carbon? What is the alkane with one carbon atom called as methane? Which is that aldehyde which has only one carbon atom? The basic wala, formaldehyde. Here we will consider the carbon atom which is included in the functional group CHO wala. ठीक है? तो इसका नाम IUPAC क्या हो जाना चाहिए बेटा? मिथेनॉल. E Methanol. निकाल करके AL डाल देने का बस. हे Yes, sir. मीथेन का E निकालने का और AL डाल देने का. वन कार्बन एटम इज मीथेन ना. Yes. अच्छा. IUPAC नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियानाल्डिहाइड, N-ब्यूटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटाल्डिहाइड, वैलिराल्डिहाइड. इन सब का IUPAC नेम बिना देखे बता सकते हो? इसका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन एटम्स है. 2 Sir, कार्बन एटम ethanol. मतलब Ethanol. इथेनॉल. 3 कार्बन एटम है. Propanol. Propanol. प्रोपेनॉल. 4 कार्बन एटम है. Butanol. Butanol. 1 2 3, 3 कार्बन एटम विथ वन साइड चेन. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये यहां से गिनने का 1 2 मिथाइल. Methyl propanol. वेरी गुड. अगले वाले का क्या हो जाएगा? वैलिराल्डिहाइड का. कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 5. तो क्या हो जाएगा ये? Pentanol. Pentanol. Butanol. सब लोग को समझ रहे हैं बेटा? मैंने भी Yes. आंसर दिया नहीं है यहाँ पे सामने. अगर बिना देखे आपको आंसर आ रहा है मतलब यू हैव अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes. अनिरुद्ध, अमित, अमन, अक्षय. सर मैं भी बोल रहा था. यस अमित, आई नो Yes. सारंग. अक्षय नायर, are you understanding beta? Yes. I hope you're watching the video which I am showing and not some other video. Very much not. Sir. अमन उठ जाओ बेटा.
दर्शना समझ में आ रहा है उठा बेटा? हूँ सर। Yes, हम्म, sir. अच्छा। आर्यन तिवारी, यस सर। बेटा समझ रहे हो ना? यस सर। ये बहुत इजी है बेटा, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। योगेश, पीयूष पावशे, वैष्णवी अजागेकर, आजगेकर, गोसावी, तनुश्री, Yes, अरे sir. तन्मय लोंधे, गुड मॉर्निंग। सो के उठ गया बड़े जल्दी बेटा? सोया ही रहेगा। यस सर। सोया ही नहीं था? किसकी याद में नहीं। पढ़ रहा था बेटा? यस। वाह वाह वाह, तन्मय सपने में भी गाली दे रहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, दे कॉमन नेम्स को आग, हम लोग को आईयूपीएसी पे ध्यान देना है। इनों के नाम क्या हो जाएंगे जो आप लोग ने बोला? एब्सोल्युटली करेक्ट, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल। वेरी इजी बेटा, लास्ट में ई निकाल करके एल डाल देने का, सिंपल। चलो, I leave up this to you. I will ask someone and that someone has to give the IUPAC name to this corresponding aldehyde. पहले तो मुझे बताओ, ये aldehyde है, कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है? Aldehyde है। अक्षय बोलता है ये aldehyde है। सारंग, ये aldehyde क्यों है बेटा? वेवल, सारंग, सरंग तो रहा। अनिरुद्ध, ये aldehyde क्यों है बेटा? Why am I repeating this question again and again? Basics should be clear in mind. Advance अपने आप आ जाएगा। हे, कोई तो बोलो। सर CHO ग्रुप। CHO group attached है। You will start numbering the chain from that end where the aldehyde group is attached. You will consider the carbon atom which is in the carbonyl carbon. Carbonyl carbon atom is used. So this is going to be carbon number 1. This is going to be 2, 3, 4, 5 ने 6। कौन कौन से साइड चेन्स आपको दिख रहे हैं? क्लोरो, ब्रोमो एंड मिथाइल। Sir, 1 chloro, 2 bromo, 3 methyl hexanal. Okay, don't you think we should go in alphabetical order? Yes. 3 bromo, 2 chloro, 2 chloro, 4 methyl. methyl. And which aldehyde is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexanal. Hexanal. Hey, Yes, sir. समझा बेटा? Yes. अच्छा, वाह। 1, 2, 3, 4, 5। 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। मैंने क्यों 2 क्लोरो से शुरू नहीं किया? Alphabetical order. B comes first. बेटा बी पहले आता है कि सी पहले आता है? ब्रोमीन का बी पहले आएगा कि क्लोरीन का सी पहले आएगा? अगर B. ये एबीसीडी नहीं पता तो लेट अस गो बैक टू। How many of you all want to go back to KG beta and have a sorted life? Me, sir. Akshay Nair, you want to go to KG beta? Now it won't be a correct time for you to go to KG because now you know much more things about the world and you might spoil the mahol over there. चलो, Yes, sir. to उधर जाके इंटीग्रेशन पूछेगा। हाँ ना, अभी लेकिन वहां का जो इनोसेंस था बेटा, वो खराब नहीं करना ना हमको। बच्चों को हम लोग को 1 ABCD और 1 2 3 से ही शुरू करने दो। उनको क्या पता आने वाला है। कितनी बार बेचारों के दिल टूटेंगे पढ़ाई की वजह से, है ना बेटा? So your name is correct, 3 bromo, 2 chloro, 4 methyl hexanal। नंबर और नाम के बीच में डैश आना चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ये सब रूल्स पता है ना? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, चलिए इसके नाम दे।
इसका नाम पता है कौन देगा? अमन ट्राई करेगा बेटा? दुनिया को दिखा दो बेटा, तुम भी कर सकते हो। क्या सर? हम्म Which is the longest chain over here? 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेनॉल हो जाएगा ना अमन बेटा? यस। हाँ। साइड चेन्स कौन कौन से ग्रुप पे लगे बेटा? सेकेंड और थर्ड पे है ना हाँ बेटा? सेकेंड पे इथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? इथाइल। इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनॉल, है ना? यस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड। सर आपने तो किया सब, मैं तो अरे यस। तुमने ऑलरेडी कर लिया था, मैंने सिर्फ वेरीफाई किया तुमसे और तुमने सबको यस बोला बेटा। अगर मैं गलत बोलता तो तुम नो बोलते तब समझ में आता। मैंने सब सही बोला इसलिए तुमने यस बोला। तुमने यस इसलिए बोला बिकॉज तुमको पता है। कॉन्फिडेंस लाओ अपना थोड़े अंदर, अपने अंदर थोड़ा, सॉरी। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनॉल, एकदम सही जवाब दिया अमन ने, वेरी गुड बेटा। एवरीबॉडी रिटन दिस डाउन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये देखो आईयूपीएसी सिस्टम और ऊपर कॉमन सिस्टम। मुझे बताएं आईयूपीएसी और कॉमन नेम के हिसाब से यही सेम कंपाउंड का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? अल्फा मिथाइल पेंट्राल्डिहाइड Penten- और नीचे वाले का pentanol. 2 मिथाइल Pentanol. पेंटेनॉल। Pentanol. Penal. हे बेटा, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते सोच रहा हूँ तो मेरे को उठा देना, मैं दवाई के इस नशे में हूँ। मेरे को सर, सिर्फ अगर पी के बहुत नींद आती है बेटा। तो अगर ऑप्शंस में ना बस ऐसा नॉमेनक्लेचर पूछा रहेगा और कॉमन सिस्टम और आईयूपैक दोनों नहीं देंगे ना, एक ही देंगे ना कौन सा? तो हाँ, तब अगर स्पेसिफिकली पूछा है कि कॉमन नेम क्या है तो ही लिखो, वरना आयु नॉमेनक्लेचर आया तो बाय डिफॉल्ट यू शुड अंडरस्टैंड इट इज आईयूपीएसी। यस सर। ये देखो अल्फा मिथाइल वैलेराल्डिहाइड, आप इसको पेंटराल्डिहाइड बोलो या फिर वैलेराल्डिहाइड बोलो, एक ही बात है, ठीक है? एंड आईयूपीएसी नेम इज 2 मिथाइल पेंटेनॉल। किसके नाल? पेंटेनॉल बेटा, सटेनॉल। पंजाबी। हाउ मेनी ऑफ यू आर पंजाबीज? नो वन। कल्याण में कोई पंजाबी नहीं मिलता, एक स्टूडेंट था पिछले 12वीं के बैच में। लिख लिया? यस सर। हाँ Yes. जी। ये देखें अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम इज 2 क्लोरो इथेनॉल। यहाँ देखो डबल बॉन्ड आया है, एक्रोलीन कॉमन नेम, एंड डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ए एन की जगह ई एन हो जाएगा, मतलब प्रोपीन का ई निकाल के ए एल डालना है। अगर अल्केन का डेरिवेटिव रहेगा तो अल्केन का ई निकाल के ए एल डालना है, और अगर अल्कीन का डेरिवेटिव रहेगा तो अल्कीन का। ये बेटा तुम समझ रहे हो? यहाँ देखो एनल, यहाँ पे इनल, सिंपल। यस सर। ओके, यहाँ इनल क्यों लिया बेटा? क्योंकि डबल बॉन्ड है ना बिटवीन माय सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। या सिंगल बॉन्ड होता तो अल्केन डेरिवेटिव होता, डबल बॉन्ड है इसलिए अल्कीन डेरिवेटिव है। हे यस सर। अच्छा, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, फिर भी यहाँ पे 2 डाला है। व्हाट डज दिस 2 मीन? Double bond. Very good. It is showing you the position of double bond. So we will consider double bond as a functional group over here. Two chloroethanol and acrolein is proptoenol.
सर एक्रोलीन कैसे आया है आप में तो कॉमन नेम? दैट इज अगेन दिस नेम्स ना बेटा, ये डिपेंड करते हैं कि वो किस सोर्स में पाया जाता है. तो दिस थिंग इज समथिंग व्हिच यू विल नॉट दिस थिंग इज समथिंग व्हिच इज थियोरेटिकल. इट इज डिपेंडेंट ऑन द जैसे सिनेमामाल्डिहाइड बोलते हैं ना अपन, सिनेमा में पाया जाता है, दैट वे बेटा. ये फाइबर होता है, एक्रिलिन फाइबर, एक्रिलिक. यस ठीक है. ये देखें, साइक्लोपेंटेन कार्बन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड. साइक्लो कंपाउंड्स पता तुम लोग को ना? यस तो सिंपल सी बात है, when aldehyde group is attached to a ring, एक सिर्फ अल्डिहाइड नहीं डालेंगे बेटा अपन, कार्बल्डिहाइड डालेंगे कॉमन नेम में. कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप में अटैच्ड है ना. ए दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, इसलिए हम लोग कार्बल्डिहाइड बोल रहे हैं उसको. ये कब बोलेंगे? व्हेन देयर आर साइक्लिक ग्रुप्स अटैच्ड. नॉर्मल ग्रुप्स अटैच रहेगा तब कार्बल्डिहाइड नहीं बोलेंगे. ठीक है, नॉर्मल अल्डिहाइड बोलेंगे. आ जाओ. दिस इज साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड एंड आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड. कॉमन नेम में देखो, हेक्सेन में ई निकाल करके अल्डिहाइड डाला है. आईयूपीएसी में साइक्लोहेक्सेन पूरा आया है, उसके आगे सिर्फ कार्बल्डिहाइड डाल दिया है. यहाँ पे कुछ भी कट नहीं किया है. यस सर. कॉमन नेम में हेक्सेन का ई निकाल दिया है. चाइना's न्यू कोविड-19 आउटब्रेक इज डेवलपिंग रैपिडली, हेल्थ ऑफिशियल. बेटा मेरी तरफ से कोई चाइना में बॉम्ब डाल के आ सकता है प्लीज? Yes. ये जीने नहीं दे रहा यार. रोज कोई ना कोई नया स्ट्रेन ले आता, जब भी आदमी को कौन थोड़ी सा सी आपटी आपटी बॉम्ब से क्या होगा वहां पे? So stupid this Chinese people are, seriously. अपने ऑफलाइन में Cyclohexanaldehyde. What बेटा? सर आपने ऑफलाइन में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया? I've not completed. I have started it. मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ. क्या नाम है अपना? अरे क्या था उसका नाम? एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज तक पहुंच गया हूँ मैं. यस सर. तुम्हारा हो गया बेटा ऑनलाइन पढ़ के? नो सर ऑनलाइन नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं किया अब तक. कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाएंगे आपको, फिक्र ना करें आप. Yes. It's a 6-membered cyclohexane ring. तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, सिंपल साइक्लोहेक्सेन में कार्बल्डिहाइड ऐड कर देने का. ये देखो, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कुछ भी करने का नहीं इसमें. बेंजीन रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर इज अटैच्ड, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड सिंपल. और कॉमन नेम में बेंजाल्डिहाइड. बेंजीन का ई निकाल करके अल्डिहाइड डाल देने का. कॉमन नेम में आईयूपीएसी में कुछ भी निकालना नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा रख के आगे कार्बल्डिहाइड ये सफिक्स डाल देना है. ठीक है गाइस, आर वी नोटिंग ऑल दिस? Yes. ये सर्दी जीने ना दे. ये कॉमन नेम जो है ना बेंजाल्डिहाइड बेटा, अगर आपने आईयूपीएसी की जगह ये भी लिखा ना, ये भी एक्सेप्टेड है. आईयूपीएसी ने ये भी एक्सेप्ट किया है. बेंजीन का ई निकाल करके उसमें अल्डिहाइड डाल दो, दैट इज आल्सो आईयूपीएसी स्टैंडर्ड ओनली. नंबरिंग कहां से करोगे बेटा रिंग में? जहां पे मेरा कार्बोनिल कार्बन. जहां पे मेरा कार्बोनिल कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ए क्या हो जाएगा? 1 2 3. थर्ड पोजीशन पे क्या है? क्लोरो. तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 क्लोरो बेंजीन कार्बल्डिहाइड और बेंजीन अल्डिहाइड, है ना? बेंजाल्डिहाइड. यस. 1 2 3 4 5 6.
ये देखो कॉमन सिस्टम में क्या हो जाएगा इसका, गामा methyl cyclonaldehyde and IUPAC is 3-methyl cyclohexane carbaldehyde. Nonsense. Cyclohexane है बेटा ये साइक्लोहेक्सेन ही बेंजीन है ना? ये बेंजीन आएगा. This is not cyclohexane. This is wrong है बेटा. ये जो Yes. स्क्रीन पे लिखा है ये कॉपी मत करना. It is 3-methyl benzene carbaldehyde, not cyclohexane है बेटा. ये साइक्लोहेक्सेन कब होता बेटा, जब बीच में रिंग नहीं होता तभी. नहीं होता. Okay, hold on, just give me a second. Let me have some water. Oh my God, I don't have water besides me. I'm thirsty. Okay, fine. ये बेटा, this is not cyclohexanaldehyde. This is benzenealdehyde, 3-methyl benzenealdehyde. And ये साइक्लो तब होता जब इसके अंदर वो रिंग नहीं होता. Okay, guys, am I clear? Yes. Yes, sir. यहाँ देखो, यहाँ उसने बरोबर बताया है. इसको कॉमन नेम में बोला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और कॉमन नेम इज सालिसाल्डिहाइड. ए बेटा हाइड्रोक्सी बिकॉज OH is attached. Normal IUPAC name is going to be 2-hydroxy benzene carbaldehyde और benzene aldehyde. दोनों ही एक्सेप्टेबल है सर. बच्चों. समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. अच्छा, ठीक है. नंबर ऑफ group attached. Okay, these are some common names and IUPAC names. You can note these down for your work. I would suggest आप इसको note down करें because common names generally theoretical आपको याद रखने होंगे. ये OPM का मतलब क्या है पता है तुम लोग को, राइट? Sir, yes, meta position, para ऑर्थो position, पोजीशन, मेटा ortho पोजीशन, position. पैरा पोजीशन. पता है ना सब लोग को? Yes. पैरा क्या होता है, Yes. मेटा क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है? 2 and 6 is ortho, 3 and 5 is meta, and 4 is para. Hey, Yes, sir. लिख लिया? Done, guys? No, sir. Done, sir. Okay. Yeah. डन हो जाएगा तो बताएं. Done, sir. ओके. M chlorobenzyl, meta chlorobenzyl. पथाल्डिहाइड. कुछ और लिखें. वेनिलीन, वनीला फ्लेवर वाली. 4-hydroxy 3-methoxy बेंजीन कार्बल्डिहाइड. मैंने मिथॉक्सी क्यों बोला उस ग्रुप को, मिथाइल क्यों नहीं बोला है? बिकॉज O अटैच्ड है ना उसमें. प्रोटोनाल्डिहाइड 2-butanol. सिनेमामल्डिहाइड 3-phenyl prop 2-enal. ये बेटा थर्ड देख, ये अल्डिहाइड ग्रुप है. जहां अल्डिहाइड ग्रुप है वहां से नंबरिंग शुरू करने का. 1 2 3. थर्ड पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो 3 फिनाइल या फिर 3 बेंजाइल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको. प्रोपीन है, देख बेटा डबल बॉन्ड है. प्रोपीन डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे तो वो मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए प्रोप 2 इनल. दालचीनी वाला. ठीक है बेटा? Yes, sir. कैन आई गो अहेड बच्चों? Yes.
Let us look at the nomenclature of ketones. It is named after the name of the two alkyl groups. Okay. So alkyl group plus ketone. Dialkyl ketone for simple ketones because those same group रहेगा ना बेटा. Yes. CH3 C double bond O क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल कीटोन और कॉमन नेम एसीटोन. Ketone. C2H पर C2H में क्या हो जाएगा? दो इथाइल ग्रुप्स है तो डाई इथाइल कीटोन. कीटोन क्यों? बिकॉज C डबल बॉन्ड O को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन एटम को. मिक्स कीटोन्स में क्या हो जाएगा? टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ना, R and R dash. They have to be mentioned in alphabetical order. अभी ये आया, एक इथाइल है एक मिथाइल है, पहले कौन आता है? E की M. E. तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन. Ethyl methyl ketone. इथाइल मिथाइल कीटोन. ये मिथाइल है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये प्रोपाइल है. मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन या फिर नॉर्मल मिथाइल प्रोपाइल कीटोन लिखा तो भी चलेगा. ये देखो, अराउंड द कार्बोनिल कार्बन एटम, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो अल्फा बीटा, राइट हैंड साइड पे जाओगे तो अल्फा डैश बीटा डैश. अरे, टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एटम. Symmetrical है ना ये तो. बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब सिंपल. अल्फा एंड अल्फा डैश इज एडजेसेंट टू द कीटो ग्रुप. उसके बाद वाला को बीटा बीटा डैश. यहां देखें, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश. इसका नाम गैस करना चाहोगे बेटा, क्या हो सकता है? नहीं, कॉमन नेम नहीं गेस कर पा रहे हो? दो ब्रोमीन एटम है ना, एक अल्फा डैश एक बीटा पे है. अल्फा डैश बीटा डाई ब्रोमो डाई इथाइल कीटोन. भाई, अल्फा डैश बीटा डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन एटम्स है, डाई ब्रोमो डाई इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल है यहाँ पे भी इथाइल है, डाई इथाइल कीटोन. कॉमन नेम बेटा. बच्चों, Yes sir, समझा. उसको लिखना था. हो जाए तो बताना. Sir. ओके. एसाइल फिनोन. ये देख बेटा, अभी यहाँ पे क्या है? अभी RCO के साथ एक क्या बोलते हैं, क्लोज चेन एरोमेटिक कंपाउंड अटैच्ड है. तो एक R है और एक R डैश है. R इज योर अल्काइल ग्रुप एंड R डैश इज योर अराइल ग्रुप. ठीक है. तो दिस एंटायर थिंग जहाँ पे अल्काइल ग्रुप विद CO प्रेजेंट है, उस टोटल चीज को हम लोग एसाइल बोलेंगे. ACYL, असाइल ग्रुप. ये देखें, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, बीच में कीटोनिक ग्रुप है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज एसिटोफिनोन. एसिड कहां से आया बेटा? इस ग्रुप से, CH3 से. ठीक है. फिनोन, फिन कहां से आया? फिनलिक ग्रुप से. ओन नोन कहां से आया? कीटोन है इसलिए. Sir methyl phenone भी बोल सकते हैं. इसको दिस इज द कॉमन नेम विच वी टॉकिंग अबाउट बेटा. Yes sir. ठीक है. ये देखो, इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोफिनोन. व्हाई प्रोपियोफिनोन? ये देखो,
2 कार्बन एटम यहाँ पे, 1 कार्बन एटम कार्बोनिल ग्रुप का, ये क्या हो जाएगा प्रोप, ये क्या हो जाएगा फिन, तो एंड दिस इज अ कीटोन, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपियोफिनोन। सॉरी, आई वाज गेटिंग अ कॉल इन बिटवीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? 2 बेंजीन रिंग्स अटैच्ड। Anyone? Common name I'm asking. No one. Benzophenone. Benzene, phenyl group. Benzophenone. नहीं? Yes, sir. अच्छा। बट सबसे बेस्ट क्या है अपना IUPAC नेम, सबका सेम रूल, ये मगजमारी नहीं, कॉमन नेम जैसी। तो करस्पॉन्डिंग जो भी अल्केन रहेगा उससे मुझे कीटोन बनाने का है, तो अल्केन का क्या निकालेंगे हम लोग, ई निकाल देंगे और कीटोन का ONE डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा अल्केनोन। जैसे अल्डेहाइड में अल्केनाल बन रहा था, कीटोन में क्या हो जाएगा अल्केनोन, On. मीथेनोन, पेंटेनोन, ऐसा बनेगा। ठीक है, ई निकाल दें अल्केन का और ONE डाल दें अल्कीन कीटोन का। ठीक है, आप देखें numbering will begin from the end which is nearer to the carbonyl group. Which end can you see near to the carbonyl group? Obviously left hand side wala. So 1 2 3 4 5 6, we are supposed to count the carbonyl carbon atom in both aldehydes and ketones. ए बेटा, फोर्थ पोजीशन पे साइड चेन है, साइड चेन इज व्हाट, मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल Well, hexanone. हेक्सेनोन। Excellent. हेक्सेन 3 ओन लिखूं कि हेक्सेनोन लिखूं सिंपल? Excellent. No. 3 ओन, वो कार्बोनिल कार्बन एटम का पोजीशन नहीं बताना है हमको यहाँ पे, ये Third बताना है। position. तो वो बताना है ना IUPAC नेम में। देखो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ये थर्ड पोजीशन क्या दिखा रहा है बेटा, कि मेरा कार्बोनिल कार्बन एटम इज द Carbon. थर्ड कार्बन एटम। Third. ठीक है, Yes. लिख लिया। So if carbonyl functional group of the ketone is present as a substituent, then it can be identified by the prefix oxo and a number is indicated to show its position in the molecule. देखते हैं, ये देखो हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन, यहाँ पे अल्डेहाइडिक ग्रुप कौन सा है, कौन सा कार्बन एटम है? 1% पे carbonyl carbon. वेरी गुड, फर्स्ट कार्बन एटम पे CHO, दिस इज अल्डेहाइडिक ग्रुप, दिस इज Ketonic group. Ketone. दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप। ये बेटा 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इन द सेम कंपाउंड। What is according to IUPAC group? First aldehyde, then ketone, then alcoholic group, right? जिसकी Yes. रिएक्टिविटी ज्यादा होती So ये कंपाउंड को हम लोग अल्डिहाइड बोलेंगे और कीटोन और हाइड्रोक्सी को एज सब्स्टिट्यूएंट गिनेंगे हम लोग, बिकॉज IUPAC बोलता है पहला प्रेफरेंस अल्डिहाइड को दो, फिर कीटोन को और लास्ट में हाइड्रोक्सी को। तो हाइड्रोक्सी और कीटोन क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन से पोजीशन पे, फोर्थ एंड फिफ्थ। And fifth. It is 5 hydroxy 4 oxo hexanal। ए बेटा, जब ये एज अ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एज अ साइड चेन आ रहा है, तो हम लोग इसको ऑक्सो बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन को हम लोग एज अ साइड चेन कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। Sir. ठीक है, ये हाइड्रोक्सी है 4, तो 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेनाल, 6 कार्बन आइटम वाला
अल्डिहाइड है। यस, Yes, sir. नाउ द सर रीजन, पीछे का स्लाइड दिखाओ ना। पीछे का स्लाइड दिखाओ, ये वाला बेटा हाँ सर। देखें, हो जाए तो बताएं। हो गया सर। अच्छा बेटा, अभी अल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज कॉमन क्या दिख रही है आपको बेटा? Carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप विच इज C डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों का Yes. कार्बोनिल ग्रुप इज कॉमन बिटवीन देम, तो इन दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सिमिलर रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग सेम बट सिमिलर। Yes, sir. Yes. Now first tell me, has everybody understood how to give the IUPAC name to the corresponding aldehyde and ketone? Yes, sir. Is this clear to everyone बच्चों? Yes. Yes. I am assuming आप लोग इस पे और प्रैक्टिस करोगे घर पे, and if there will be any doubts and all, you will get it checked by me, right? Yes or no? Yes. Yes. Yes, beta. So since they have the same carbonyl group, their properties and methods of preparation are going to be very similar. So methods of preparation of aldehydes and ketones. Should I start it now or in the next lecture? Start, sir. Acha. Look at the ways which we are going to use to prepare, aldehydes and ketones. ये देखें, ऐसे कितने सारे कंपाउंड्स हैं। We can oxidize alcohols. ये बेटा अल्कोहल इज OH, उसको Yes. ऑक्सीडेशन करने का, उसका ऑक्सीडेशन करने का, OH में से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, राइट? Yes. Yes. हाइड्रोजन अगर COH से निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड O बचेगा विच इज कार्बोनिल, राइट? Yes. Dehydrogenation of alcohols, more or less the same thing. हाइड्रोजन निकलना दारू का। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के अंदर O ऐड करना थ्रू ओजोन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रॉपरली ऐड करना अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स मतलब COOH की जगह COOCl वगैरह कुछ रहेगा और उसका रिडक्शन करना। रिडक्शन मतलब व्हाट इज रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Yes. अभी क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनका रिमूवल मतलब रिडक्शन हो जाएगा। Yes. अच्छा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, विच इज द नाइट्राइल ग्रुप बेटा? C triple bond N. C triple bond N, that is cyanide or nitrile, both are same. Position different होता है, sir. जी। अच्छा, tell me one thing, C triple bond N and C N triple bond C, both are same or different? Sir, repeat. C triple bond N and N triple bond C, दोनों सेम है कि अलग अलग है? Sir, नाम अलग अलग है. नाम अलग अलग है, अगर नाम अलग अलग होगा तो काम भी अलग अलग होगा। अक्षय और Yes. विजय में डिफरेंस है बेटा। Yes. Akshay is super intelligent, Vijay is stupid, right? Yes. Now you won't say yes. नहीं, उसका opposite. Sir, lone pair बदल जाता है ना, कार्बन यहाँ पे Yes, कार्बन yes, triple bond में. absolutely. Lone pair बदल जाता, correct. ठीक है. So what we'll do is we will start with the preparation of aldehydes and ketones in the next lecture. I'll take a break because I again have lecture at 9 and then I again have to rush for offline lectures. ठीक है बेटो? I hope you've understood everything which we are learning today. Yes. तनुश्री फाइनली बोली yes. Very good बेटा. अमन समझा कह रहे? सो गया, नहाने चला गया। अनिरुद्ध, अरिन, दर्शना, जॉसलिन, केदार, मानस, सानिका,
मनोरथ, पीयूष, श्रद्धा, श्रावणी, तन्मय, तेजस, येस सर. कळालंय सगळ्यांना? पीयूष, पावशे, येस. तर हे आपण सतत घरी प्रॅक्टिस करायचं, न्यूमेरिकल्स बघायचे नोट्स मधून, टेक्स्टबुक मधून, ऑनलाईन वरून, आणि जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करून याची खात्री करून घ्यायची की आम्हाला हे येतं आणि एक्झाम मध्ये जर आला तर आम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळणार. सीईटी मध्ये. ओके गाईज, Yes, sir. Yes. खुदा हाफिज. नहीं? हाँ.